Hello students, welcome to ICC online classes. In this lecture, I will discuss about the properties of inverse trigonometric function. So all the properties of inverse trigonometric function are the conversion of properties of trigonometric function. So start from first. This is the property of trigonometric function, that is sin minus theta minus sin theta, cos minus theta cos theta and so on. यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि cos और sec ये दोनों पॉजिटिव हैं एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव हैं। आप उसका रीजन समझिए। यहाँ पर मैंने ये क्वाड्रेंट दिखाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये ASTC रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। A means all positive, it means in first quadrant all trigonometric ratios are positive. In second, S means sine. If sine is positive, then cosec is also positive and remaining are negative. In third, tan is positive, cot positive and remaining are negative. In fourth quadrant, cos and sec are positive and remaining trigonometric ratios are negative. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया एंगल दो तरह के होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो एंगल है वो नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो नेगेटिव एंगल्स की हो रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसके आगे प्लस साइन आया है और बाकी सभी के आगे माइनस साइन आया है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का कन्वर्जन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि कॉस और सेक पॉजिटिव और रिमेनिंग नेगेटिव। यहां पर अलग तरीके से है कि साइन का जो ग्रुप है, साइन, टेन और कोसेक, इन सब के आगे माइनस साइन आया है, जबकि कॉस का जो ग्रुप है उसके लिए पाई माइनस आया है। ऐसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का प्रूव करके दिखाता हूं। सपोज फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। As we know, sin inverse minus x is an angle, so let us consider this angle is theta, or you can say minus x is equal to sin theta, दोनों तरफ का साइन लेने पर, और you can say x is equal to minus sin theta. As we know that sin of minus theta is minus sin theta, it means x is equal to sin minus theta. Or next, this implies sin inverse x equal to minus theta. माइनस साइन को आप इधर ले आओ, माइनस sin inverse x equal to theta. Now what is theta? Theta is sin inverse minus x. So minus sin inverse x is equal to sin inverse minus x. तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. Now I prove this property for the second group, that is cos. We want to prove that cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. So start from left hand side and LHS equal to cos inverse minus x. As we know that cos inverse minus x is an angle, so let this angle is theta. Next it is minus x is equal to cos theta. cos inverse का मतलब 1 अपॉन cos नहीं होता है, बट ये वैसे ही काम करता है जैसे कि 1 अपॉन cos की तरह से। तो माइनस एक्स इक्वल टू cos थीटा और x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। एज वी नो दैट cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सो अप्लाई दिस प्रॉपर्टी एंड वी गेट cos पाई माइनस थीटा, एंड दिस इंप्लाइज cos inverse x is equal to pi minus theta, and this implies
cos inverse x is equal to pi minus theta. So what is theta? Theta is cos inverse minus x, so it is cos inverse minus x. साइड चेंज कर दीजिए, इसको उधर इसको इधर, एंड दिस इंप्लाइज cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x. अब हम ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं. cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. This is the property of trigonometry. As we know that there are 6 trigonometric ratios, but we always work only in 3, that is sin, cos and tan. अब इसी प्रॉपर्टी को आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखिए. तो ये प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है. कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x. सेकंड, sec inverse x is equal to cos inverse 1 upon x, and third, cot inverse x is equal to tan inverse 1 upon x or pi plus tan inverse 1 upon x when x is positive, when x is negative. यहाँ पे समझने की बात है कि cos इनवर्स x की बात हो रही है और sec इनवर्स x की बात हो रही है. तो जब भी x की बात होगी तो x अपने डोमेन में लाई करना चाहिए. तो cos इनवर्स x और sec इनवर्स x दोनों का डोमेन होता है -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी. और इस चीज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं mod x इज ग्रेटर देन 1 और mod x इज ग्रेटर देन 1. इट मींस mod x की वैल्यू 1 से बड़ी है. तो सेम मीनिंग है कि x जो है वो -1 और 1 के बीच में नहीं है. अब इस प्रॉपर्टी का हम प्रूफ देखते हैं. कोसेक इनवर्स x, फर्स्ट प्रॉपर्टी कोसेक इनवर्स x स्टार्ट फ्रॉम द LHS. लेट कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, and this implies x is equal to 1 upon sin theta. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, then this implies sin theta is equal to 1 upon x. Now find theta. So what is theta? Theta is equal to sin inverse 1 upon x. Now what is theta? Cosec inverse x. So we can say cosec inverse x is equal to sin inverse 1 upon x. So this is the proof of this property. Similarly, we can prove sec inverse x is equal to cos inverse 1 upon x. x डोमेन में लाई करना चाहिए और डोमेन है mod x greater than or equal to 1. And last, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस इसके दो तरीके से है. cot inverse minus x, cot inverse x equal to tan inverse 1 upon x if x is positive, and pi plus tan inverse 1 upon x if x is negative, and it is not defined for x equal to 0. Now I discuss the third property, which is the conversion of this property, that is sin 90 minus theta cos theta cos 90 minus theta sin theta. Similarly, tan 90 minus theta cot 90 minus theta tan theta. लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यही प्रॉपर्टी किस तरीके से लिखी गई है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. सेकंड, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाई 2. एंड थर्ड, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2. ये ट्रिग्नोमेट्री की इस प्रॉपर्टी का कन्वर्जन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है, और ऑल द x lies in its domain. So what is the domain of sin inverse x and cos inverse x? The domain of sin inverse x and cos inverse x is
x belongs to minus 1 comma 1, and tan inverse and cot inverse x, domain is x belongs to real number, sec inverse और cosec inverse का जो डोमेन है that is x mod x is greater than or equal to 1। अब हम इस प्रॉपर्टी का प्रूव करके आपको दिखाते हैं। सपोज sin inverse x which is an angle, let this angle is theta, and this implies x is equal to sin theta। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। cos लेके आना चाह रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, sin थीटा को लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। cos को इधर लाओ, दिस इंप्लाइज cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। आप थीटा को इधर ले आइए, दिस इंप्लाइज थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो व्हाट इज थीटा, ऊपर से देखो व्हाट इज थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। सो दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू रख दी है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। Similarly, we can prove that tan inverse x plus cot inverse x pi by 2, sec inverse x plus cosec inverse x equal to pi by 2. Now I discuss the fourth property. In the class 10th, the question of the form, suppose the value of tan theta is given and we want to find the values of other trigonometric ratios. तो ये सब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। अब यही प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से अप्लाई होगी मैं आपको बताता हूं। सपोज क्वेश्चन इज कन्वर्ट साइन इनवर्स 5/13 इनटू अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो दिस मेथड इज वेरी इजी। जैसा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है ठीक उसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 5/13 इज एन एंगल, सो लेट दिस इज इक्वल टू लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा एंड दिस इंप्लाइज 5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, and suppose this angle is theta and this triangle is ABC. This angle is theta, so sin theta is defined as perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular front side 5, hypotenuse 90 के सामने की साइड this is 13. So by the Pythagoras theorem this side is 12. Suppose you want to convert this ratio into tan inverse. So first of all write the value of tan theta. So what is tan theta? Tan theta is 5/12. tan उधर पहुंचाएंगे, so what is theta? Theta is equal to tan inverse 5/12. Now what is theta? Theta equal to sin inverse 5/13. So sin inverse 5/13 is equal to tan inverse 5/12। इस तरीके से मैंने sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके आपको दिखाया है। अगर आप इसको अदर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सपोज आप इसको cos में या sec में या cosec में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, सपोज आप इसे cos इनवर्स में लाना चाहते हैं तो आप यहां से लिखिए cos थीटा। सो व्हाट इज cos? cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज इक्वल टू 12/13
and theta is equal to cos inverse 12 upon 13. Now what is theta? Sin inverse 5 upon 13. So sin inverse 5 upon 13 is equal to cos inverse 12 upon 13. तो तरीका अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बात वही है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, बिल्कुल सेम। अब ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। आप सिंपली लिखिए कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। आपको सिंपली ट्रायंगल बनाना है, ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधा तरीका बता रहा हूं। साइन इनवर्स, सपोज कॉस की वैल्यू जो आपने 10th में लिखी थी, बस सेम वही वैल्यू लिख देनी है, दैट इज 12 अपॉन 13, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12, कॉट 10 का रिवर्स है, पिछली प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने, तो ये आपका हो गया 12 अपॉन 5, सेक कॉस का रिवर्स है 13 अपॉन 12, कोसेक साइन का रिवर्स है, दिस इज 13 अपॉन 5। अब एक और एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन इज सेक इनवर्स 5 अपॉन 4 and we want to convert sec inverse 5 upon 4 into other trigonometric ratios. So simply this is theta and this implies sec theta is equal to 5 upon 4. एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाएंगे और वहां पर एक एंगल है थीटा, लेट दिस ट्रायंगल इज ABC. So sec theta is defined as hypotenuse upon base. So this side is 5, base is 4, y Pythagoras theorem, this is 3. Now we convert this in sin inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, cosec inverse. बहुत सिंपल, ये आप सब लोग जानते हो। What is sine? Perpendicular upon hypotenuse, this is 3 upon 5. Sec inverse 5 upon 4 is equal to, सभी आपस में बराबर हैं, cos base upon hypotenuse 4 upon 5, 10 perpendicular upon base 3 upon 4, cot 10 का रिवर्स है 4 upon 3, cosec sin का रिवर्स है 5 upon 2. Now I discuss the fifth property of inverse trigonometric function. It is written here, sin inverse sin theta is theta only when theta lies in interval -π/2 to π/2. Cos inverse cos theta equal to theta when theta lies in interval 0 to π. Simply the range are written here. जब थीटा की बातें होंगी तब रेंज लिखी जाएगी और जब x की बातें होंगी तब डोमेन लिखा जाएगा, आप ध्यान रखिए। तो साइन इनवर्स साइन थीटा हमेशा थीटा नहीं होता है, सिर्फ साइन इनवर्स साइन थीटा तभी थीटा होता है जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 में लाई करती है, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा भी थीटा तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 0 to π होती है। एक दो एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन π/3 and answer is π/3 according to this property because π/3 lies in this interval. What sin inverse sine 2π/3 is not equal to 2π/3. sin inverse sin 2π/3 की वैल्यू 2π/3 के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इस रेंज में लाई नहीं करता है जो कि -π/2 से π/2। तब क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको इस रेंज में लेकर के आओ -π/2 से π/2, या फिर sin 2π/3 की वैल्यू निकालो। दोनों बातें एक ही हैं। यू कैन राइट इट एज
साइन इनवर्स साइन, नाउ इट इज 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो यहाँ के हिसाब से, दिस इज पाई माइनस पाई बाई 3। If you subtract pi by 3 from pi, you get 2 pi by 3. So this is the conversion of trigonometric formulas. Pi minus pi by 3 sin 180 minus theta. इस लाइन पर कोई रेशियो नहीं बदलता है, साइन साइन ही रहेगा, ठीक। पाई माइनस, माइनस का मतलब है पीछे वापस, और वापस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 प्लस साइन आएगा। प्लस साइन इसलिए आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। और अब ये प्रॉपर्टी जो आपके सामने लिखी है ये अप्लाई हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा, इट इज ऑल्सो पाई बाई 3। अनदर क्वेश्चन, इफ देयर इज cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा एंड थीटा लाइज इन द इंटरवल 0 to पाई। तो यहां पर जो 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है 0 to पाई, एंड योर आंसर इज 2 पाई बाई 3 because 2 pi by 3 lies in this interval 0 to pi, then this property is applicable. But sin inverse sin 2 pi by 3 is not equal to 2 pi by 3 because 2 pi by 3 does not lies in this interval. Give one more example. Suppose tan inverse, what is the value of tan inverse tan 3 pi by 4? So apply this property, tan inverse tan theta equal to theta when theta lies minus pi by 2 to pi by 2. It means 3 pi by 4 does not lie in this interval, so this property is not applicable. So first of all, by using transformation formula, we convert in this range 3 pi by 4, and we can write it as tan inverse tan पाई माइनस पाई बाई 4। आप लोग ध्यान दें कि कन्वर्जन सिर्फ इस लाइन पे करें, क्योंकि इस लाइन पर कन्वर्जन करने में रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, पाई हम यहां पर आ गए, माइनस का मतलब वापस होंगे, वापस होने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, सो यू गेट tan इनवर्स tan minus tan pi by 4 minus tan pi by 4, tan 180 minus theta is minus tan theta। और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे tan इनवर्स माइनस x वाली प्रॉपर्टी, तो tan इनवर्स माइनस x इज माइनस, आगे आ जाएगा tan इनवर्स tan pi by 4। Now this property is applicable because theta lies in this range, and your answer is minus pi by 4।